Hello friends. In the last session, we had seen how to how to compile and compile and run. Okay, the basic code in C++. So today we are going to see how we can define variable, how we'll accept input, and how we'll display the value. Okay, we'll do this much, and also we'll try to understand. Also, we are going to understand how the function is getting defined and how the function is getting called. Okay, so basically we are going to recap. I think this is the basic concept. Function क्या होता है, function definition क्या होता है, तो we'll understand how we can call the function, how we'll create the function. So I think this much we are going to do today, right? So please refer the previous video for this. Now if we run this code, so it will run simply and will display something on the screen. You can see that screen. This is your online GDB compiler. This is like very easy to use, and you can operate this phone also through the phone पे आप कर सकते हो इसको. So the hello world got print. Okay, we know this how it works. In the last session we all also saw like how the endl works, right? In the last session we had seen how endl works. Also we had seen how slash n, I mean how to take the cursor onto the next line. Okay, so we'll all seen that for the decoration purpose. Now without wasting your time, let's go ahead with the how we can declare the variable. So in order to declare the variable, we will write int number 1 comma number 2 comma number 3. Depends how many numbers you want to define. You can give any name to the variable. So here this is one of the data type. This int keyword is one of the data type. Similarly, we got a float for the decimal number. We have got the characters for the character numbers. So these are the different data types which are available based on your requirement. Okay, I hope you understood what is the data. So we have created 3 data types. Next is we'll have to assign the values. So we can directly assign the values, no issues with that. So suppose number 1 is equal to 3 and number 2, लेट्स टेक इन द नेक्स्ट लाइन पे लेते हैं इसको, एंड नंबर 2 का वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं 4. सो व्हाट विल हैपन, so this will get processed if we write number 3 is equal to number 1 plus number 2. So what will happen, ये दोनों को ऐड करेगा और result will get stored, this result will get stored inside the variable number 3. correct? So this is how it goes. नाउ यहाँ पे मैंने जो है ये जो इनिशियलाइजेशन किया है, दिस कॉल्ड स्टैटिक इनिशियलाइजेशन. स्टैटिक मतलब जब प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है वो टाइम पे हमने इसको कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज कर दिया है. ठीक है, और इस कोड को मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ. सो पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ द रिजल्ट. सो सी आउट विल प्रिंट हियर दैट द एडिशन रिजल्ट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे. फॉर दैट आई नीड टू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल नंबर 3, और इसके बाद में एंटर मारोगे तो प्रिंट्स ऑन द नेक्स्ट लाइन. सो दैट्स ऑल्सो गुड. सो ये हो गया इस तरह से. लेट्स रन द कोड. क्या आएगा आउटपुट, एनी गेस? ओके, दैट्स राइट. सो लेट्स रन दिस. आई एम रनिंग द कोड, इट्स गेटिंग कंपाइल्ड, और यहाँ पे कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन दोनों साथ में हो जाता है. तो हियर इज सेइंग द एडिशन इक्वल टू सेम. ओके, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन मिनिमाइज करेगा द रिजल्टेशन इक्वल टू 7. नाउ ये जो भी किया मैंने, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक अप्रोच, राइट? अगर मुझे आप बोलोगे कि सर मुझे यूज़र से लेना है तो क्या करूँ मैं? अगर आप यूज़र से ले रहे हो डेटा तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक अप्रोच. और ये मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ सो दैट ये कोड मैं रख दूंगा
कमेंट हटा के अपने कोड पे यूज़ कर सकते हो इसको. Okay, now I'll show you how we can have the value from the user. So already मैंने user को यहाँ पे define करा value. I'll keep use it again यहाँ पर. Now I'll ask the user, hey user, I'll use the cout statement and I'll tell him please enter some values and two values. So user will understand that he wants to enter two values. Please enter any two numbers, two values or the numbers. और यहाँ पे मैं इसको एंडल कर दूंगा. एंडल टेक द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन. आप स्लैश इन भी कर सकते हो, डबल दिस थिंग, स्लैश इन थिंग. एंड हियर यूजर विल एंटर द वैल्यूज हियर. सी इन, आई विल राइट इट एज नंबर 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा सी इन नंबर 2. सो वॉट एवर यूजर एंटर्स हियर सो दैट विल गेट स्टोर हियर. उसके बाद में मुझे अभी प्रोसेस करना है. तो प्रोसेस करने के लिए मैं क्या करूँ, नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2. सेम चीज़ कर रहे बट यहाँ पे द थिंग इज कमिंग स्टैटिकली और यहाँ पे यूज़र इज एंटरिंग. ओके, यू लाइक हाउ वी डू इन द एटीएम मशीन्स. ओके, आपको वो पूछेगा एटीएम नंबर डालो आप, फिर आप नंबर डालते हो. तो दिस इज यूज़र एंटरिंग द नंबर. ओके, यूज़र एंटरिंग नंबर. सो इट्स कॉल्ड एज डायनामिक. वाई डायनामिक? बिकॉज when the code is running the values are in between. Okay, now it's happened for both. I hope you understood this. Now we have processed it, right? अभी हम उसका वैल्यू प्रिंट करेंगे. सो यहाँ पे विल राइट द स्टेटमेंट. विल से दैट द रिजल्ट इज इक्वल्स टू और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा देंगे और आवर रिजल्ट इज इन द नंबर 3. सो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रिंट. अगर आपको स्लैश एन यूज़ करना है तो यूज द स्लैश एन ऑल्सो. ठीक है, ये भी चलेगा बट डोंट फॉरगेट टू पुट द सेमी कॉलन, अदरवाइज विल गेट द एरर मैसेज. तो मैंने आपको यहाँ पे दो अप्रोच बता दिए कि आपको दो नंबर का एडिशन कैसे करना है नॉर्मल वे में विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन. तो यहाँ पे आपको पूछेगा प्लीज एंटर टू नंबर लाइक हाउ वी डू इन द एटीएम मशीन. So suppose first number I am entering as a 14 and second number I am entering as a 7. So what will be the output? Right, it's a 21. Correct. So this is how it's very simple. I hope you understood the first point what we have planned today. We have planned to understand the variable, accept input and display the output. Now we'll go ahead with the function call. Right. Before that, let's save this code. So this was code to input and output process, input and output. So you can refer this code. I'll share the link of this. So आपको कभी भी कोड आप एक्सेस कर सकते हो. अभी हम लोग दूसरा कोड क्या करेंगे, मैं I'll just copy this code because I may require this thing. Let's create a new file now. So उसको हमको स्टॉप कर देते हैं. न्यू फाइल. पहले सेव कर लेते हैं. सेव कर लेते हैं. Okay, this is in the same project is opening, right? So let's create a new project. So उसके लिए हम लोग को यहाँ पे create new project करना पड़ेगा. So let's create as a new project. Now what I'll show you is I'll show you how we can do it for the functions. तो ये सारा ऊपर डेटा मुझे unnecessary नहीं चाहिए, ये सारा डिलीट कर देता है यहाँ पे. मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा. मुझे यहाँ से इसको करना पड़ेगा C++ कंपाइलर. Okay, so you don't want this. What is this? Okay, let's create a new project again. View this. ठीक है, यहाँ से कंपाइलर सिलेक्ट करना है हमको. हम C++ पे कर रहे हैं तो लेट्स सिलेक्ट C++. Compiler is getting changed here. This is giving the C, not C++, is giving C का compiler thing. अभी करो. मैं आपको दूसरी बार बता रही हूँ, सेम मेथड से आपने सोच कम किया है, अब आपको एक सम में प्रॉब्लम हो गई.
I think my internet is slow, I guess. No, other things are working so perfect. ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? Okay, let me open a new fresh. Okay, C++ online compiler. Okay, yeah, now this is that. Okay, now let me just increase the font size there. Okay, ठीक, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, तो आई जस्ट टेक दिस ऑफ फ्रॉम हियर. ये सारी चीज़ें उड़ा देता मैं यहाँ से, तो ये मैंने उड़ा दिया. सो हियर इज़ गॉन. ओके, ये भी मुझे एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट इट लुक परफेक्ट. ये भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ इसको. ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड द फंक्शन कॉन्सेप्ट. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन वी शुड अंडरस्टैंड दी फंक्शन डेफिनेशन. ओके, सो हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ फंक्शन डेफिनेशन. ओके, एंड हमको ये भी समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कॉलिंग फंक्शन. दो चीज़ें होती है, राइट. कॉलिंग फंक्शन होता है कि आप फंक्शन को इन्वोक कैसे करते हो. सपोज आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, राइट. आप फ़ोन उठाते हो, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हो. तो दिस योर कॉलिंग फंक्शन. और एट द पिज़्ज़ा हट वो आपका डिलीवरी लेते हैं वहाँ पे, ठीक है. पिज़्ज़ा आप जब भी ऑर्डर करते हो तो दैट गोज़ टू पिज़्ज़ा ऑर्डर, और वो उसके अंदर पूरा प्रोसेस करते हैं. जो भी ब्रेड लेना है, जो भी वेजिटेबल्स लेना है, they will do that complete processing. So this is your function definition and this is called as calling function, correct. So now I have taken example of pizza only, so let's go with the pizza only. So here what we'll do, we'll call the function order. Okay, order is pizza order, and we need to define the function. So for that we'll have to write this function keyword, then pizza order thing. ये फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, और इसके अंदर आप जो भी लिखोगे फ्रॉम हियर कंट्रोल जम्प्स हियर. सो आप सपोज यहाँ पे लिखते हो सपोज लाइक रिसीव्ड योर ऑर्डर, एंड लेट्स डेकोरेट इट हैंडल थिंग, ठीक है. प्रिपरेशन इज अप, इज गोइंग ऑन. सपोज हम लोग ऐसे लिख रहे गोइंग ऑन, और आई राइट बोथ द अप्रोच. स्लैशन लिखो या फिर आप ये लिखो, दोनों चलेंगे अप्रोच. ओके, फिर उसके बाद में वो एक मैसेज भेजता है ना कि योर ऑर्डर डिलीवरिंग सून. सो लेट्स गिव अ मैसेज. हम यहाँ पे भेजेंगे यू विल गेट ऑर्डर, you will get order in into in 30 minutes, or maybe in 5 minutes, or in 10 minutes, whatever it is, depends what from what pizza order you have given them. And सही है, तो हो गया ये. तो यहाँ पे होगा क्या, the hello will get printed here, and suppose here I wrote a message, got pizza, और एक स्टेटमेंट सपोज और लिखना है मुझे यहाँ पे, हैंडल श्योर. यहाँ पे मुझे लिखना है इट वाज ऑसम, इट वाज अमेजिंग, ठीक है. अभी जाओ तुम लोग भी ऑर्डर करो पिज़्ज़ा, ठीक है. नाउ सी हाउ द फ्लो कम्स. ऑलवेज एक चीज़ याद रखना, प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड. फिर वहाँ पे जाएगा हेलो वर्ल्ड, फिर विल गो दिस लाइन. ये जो वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, ठीक है. सो कॉलिंग फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ का सारा कुछ छोड़ के वो डायरेक्टली इस पर कंट्रोल करेगा, जंप. और फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, और कुछ बचा नथिंग इज देयर. तो जब ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, इसके बाद इट विल जंप ऑन टू द फ्रॉम वेयर द ऑर्डर वॉज मेड. अगर आपने ऑर्डर दिया है तो पिज़्ज़ा डिलीवरी बनाएगा और आपके पास ऑर्डर आके डिलीवरी करके जाएगा. उसके बाद में यू विल से दैट गॉट द पिज़्ज़ा, इट वाज ऑसम, राइट.
नाउ चेक द फ्लो इट्स डूइंग लाइक दैट और नॉट. ठीक है, वो हम देखते हैं अभी इसको. मैंने स्क्रीन बड़ा कर देता वापस. सो आई हैव एग्जीक्यूटेड द रन कमांड हियर. देखते क्या होता है. देयर इज अ कंपाइलेशन एरर. इट्स सेइंग दैट compilation failed due to following errors. Error pizza order was not declared in the scope. Okay, so हम एक चीज़ मिस कर दिया हमने. हमको उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा on the top. So we'll have to write its scope there. So तो फिर क्या करोगी? void pizza order return type of the function. void. ठीक है, अभी रन करके देखते कोई एरर है. It's saying that expect initialization before int. मतलब इसका क्या हुआ. Just read the complete this thing here. Line number 61 error expectation before int. मतलब क्या बोल रहा है ये. on the line number 6 int main. तो int main ही तो होता है इसमें. मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. कोई डाउट है आपको आगे? Okay, so we getting some problem. यहाँ पे कुछ तो problem आ रहा है. So 6.1 there is some problem somewhere here. I think we not given. हमने यहाँ पे शायद semicolon नहीं दिया है. So yeah, now it's working fine, right? So here you can see hello world received order. Preparation is going on. You'll get order in 10 minutes. Then it goes from where the function has got called. You got pizza. It was awesome. So just carefully watch this the sequence. Okay, it starts from here. Hello world gets printed first. फिर ये इसको कॉल करता है. बिकॉज ऑफ दिस इट विल जंप ऑन टू दिस. फिर ये इसको इसको और इसको कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. और ये होने के बाद दोबारा यहाँ पे जाएगा एंड विल टेल दैट गॉड पिज़्ज़ा इट वाज ऑसम. Fine. So this is how it goes. I'm sharing this link of the in the comment section. You can copy from there. So there are different approaches of defining the function concepts. So we'll see that later on. Hope you understood the function definition and calling function, and also how to accept the data as an input and output. So thank you. Okay, so next time please refer this. Thanks, and please share and subscribe as well. Bye. Bye.